A very warm welcome to all the members present here on our channel. This video is brought to you in association with A1 Zone Competition, an institution which has got its adept hand in making people from zero to hero. Alright, so now first of all, our agenda for today is LT grade syllabus and the LT grade examination. We're doing this for you people. First of all, we must have a strategy in mind. You must have heard about a quotation, and that quotation was like, the more you sweat in the practice field, the less you bleed in the war. So this is a practice field, this is a practice arena, and we are going to chalk out our strategy for the LT grade examination. Do you have it in you? Do you really want to crack it? So here is the syllabus with us. First of all, as you can see that everyone knows about the scheme of the examination, but again I'm telling it is a part of the strategy, so you can say it's sort of a prologue and we will soon reaching to epilogue. देखिए मैंने आप लोगों के लिए दो टर्म्स को यहाँ पे यूज़ किया है. So prologue यहाँ पर हमारा यहाँ पे if you can see that section 1 is for English literature and section 2 is for literature in English. Clear? English language, sorry, first one, second one is literature in English. MCQs आपके सामने रहेंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे इन एग्जामिनेशन कंप्राइजिंग ऑफ 150 मार्क्स एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, दैट मीन्स 1/3 मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस विल बी डिडक्टेड. Part 1 is from general studies. Like I will not really be wasting my time in explaining about GS and general studies, everyone knows, or because right now the focus, the sinecure of this thing is the main subject that will consist of 120 marks. I'm more concerned about this 120 marks. So chaliye, let's move to the next segment. Let's move to the next slide. So what I have done in this video, I have bifurcated the whole syllabus. I have divided it into certain segments: section A, section B, section D, and section D. So first of all, as you can see that, let me remove the slide here. Yeah, section 1 is for English language. Now in this English language, you can see that what we have to focus upon is the unseen prose and poetry passages for language comprehension and appreciation. First of all, if you really want to outwit any kind of task in English language, you need to understand the vocabulary and synonyms. यहाँ पे लिखा unseen prose आएंगे, poetry आ सकती है for comprehension. The meaning of the word comprehension is to understand. देखिए, there is a thing known as syllogism. आपने syllogism पढ़ा होगा जहाँ पे different हमारे paragraphs होते थे. The best thing about all these things is that analysis poetry आपके सामने आ सकती है. They might ask you different kind of questions. इसका rhyming scheme क्या है, इसका meter क्या है, whether it is in blank verse, the kind of figure of speech literary device used, or might be in the format of the prose. Next you can see that the grammar, punctuation, part of speech, spellings, word formation and vocabulary, tense, narration, conditional sentences, concord, phrasal verb, idiomatic expression, transformation, synthesis. देखिए इसका जो सिलेबस है पीजीटी से थोड़ा सा वेरी करता है. अब देखिए पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी सारी की सारी पार्ट ऑफ स्पीच आ जाती है, नाउन से लेके आपके वहाँ पे इंट्रोजेक्शन तक. अब कुछ एक सेगमेंट्स में आपको बता सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू आउट. सपोज यहाँ पर आपका स्पेलिंग्स दे रखा है, वर्ड फॉर्मेशन दे रखा है एंड वोकैबुलरी देखा है. व्हाट आई रियली फील, जो आपका ये वाला पार्ट है, वोकैबुलरी वाला पार्ट है, दिस विल बी कवर्ड वाया न्यूज़पेपर रीडिंग. इसलिए देखिए यूपीएससी वालों को हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इसलिए नहीं बोला जाता है दैट दे हैव टू फोकस ओनली ऑन द इंटरनेशनल एस्पेक्ट और टू कीप देमसेल्व्स अपडेटेड. It is actually done on purpose. It is done deliberately so that they can actually enhance their vocabulary. जितने आपको words वहाँ से मिलते हैं और खासकर जो editorial words होते हैं वो आते हैं. अब जैसे कि हम ही लोग ने देखा पैंडेमिक में हमारे सामने कितने सारे words हैं. We got the word quarantine, we got the word isolation, we got the word sanitizer. कितने सारे words हमको यहाँ पर देखे मिले. We got the word contagious. जितना सिनोनिम्स आपको लिखेंगे उतना आपको आगे आएगा. आगे देखिए आपके सामने है कंडीशनल सेंटेंसेस. इफ़ यू आर वेल अवेयर विद कंडीशनल्स, इफ़ यू वेल अवेयर विद टेंसेस, तो कंडीशनल्स आपको खुद ब खुद आ ही जाएंगे. सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, आई फील दैट दिस इज द ह्यूज एक्सरसाइज ऑफ ब्रशिंग ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स. इसमें सारे आपके आ जाते हैं, फिर वो चाहे प्रोनाउन हो, फिर चाहे वो एडजेक्टिव हो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट. ऑलराइट, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन हम डे बाई डे रोज करेंगे, रोज एक हम सेशन बनाएंगे और सेशन के अकॉर्डिंग वीडियोज़ को हम अपलोड करते जाएंगे. आगे देखिए हमारे सामने दे रखा है यहाँ पे ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, एंड लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग. ये दो पॉइंट्स हैं, दीज आर टू बी कंसिडर्ड. अब क्या करना है आई विल टेल यू लेटर. नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. सेक्शन ए देखिए हमारा आता है लिटरेचर इन इंग्लिश, दैट इज लिटरली फॉर्म्स एंड मूवमेंट. दिस इज़ माई बेस्ट पार्ट, यू नो आई लव दिस थिंग बिकॉज जितना हमारे पास अगर आप देखें लिटरेरी टर्म्स जो होते हैं, दिस इज़ प्रीटी मच हार्ड टू
cover. अब जैसे कि आपके सामने मार्केट में काफ़ी सारी बुक अवेलेबल, लाइक सपोज आई हैव दिस बुक राइट नाउ इन माय हैंड, अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स. नाउ दिस इज इफ यू से दिस इज़ 430 पेजेस, 430. इन्हें कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतने सारे टर्म्स हो जाते हैं. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, इफेक्टिव फैलेसी, एडाइनेटन, इफ़ यू हैव टू से देयर इज एसेंडेटन, एनचैम्पमेंट, और उसके बाद जूमॉर्फिज्म. आई मीन इतने सारे टर्म्स है. इफ़ आई हैव टू आस्क, बहुत होते हैं. ट्रेजिडी में इतने सारे वर्ड हमारे हो जाते हैं. कैथारसिस, कैटास्ट्रॉफी, peripatia, hamartia, and you can say anagnorosis, which is the state of recognition. Like everything is there. तो ये देखिए लिटरेरी आपके टर्म्स में आ जाते हैं, लिटरेरी देखिए आपके फॉर्म्स में आ जाते हैं. अब इसमें एलिगरी क्या है, बैलेट क्या है, ओट क्या है. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सेगमेंट बनाएंगे. सेगमेंट में जैसे कि आपके पहले हम पोइट्री उठाएंगे. लिटरेचर हैज़ गॉट 4 डिविजन्स. वो 4 डिविजन्स के अकॉर्डिंग एक एक हम उठाएंगे. तो जैसे कि उसमें हमारा बैलेट है, ओड है, सोनेट है, एपिक है, मॉकिपिक है, लिरिक है, एलिजी है, सब के सब हमारे कवर हो जाएंगे. ड्रामेटिक है, फ्री वर्स एंड राइम मीटर. फ्री वर्स वगैरह तो जैसे कि हम लोग जब प्रोसोडी पढ़ेंगे, द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्सेस, उसमें ये सारा आपका पूरा कवर हो जाएगा. नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपके सामने ड्रामेटिक फॉर्म्स हैं, ट्रेजिडी, कॉमेडी, ट्रेजाई कॉमेडी, जैसे कि टेम्पेस्ट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, दीज आर द ट्रेजाई कॉमेडी. शेक्सपियर की 4 इंपॉर्टेंट ट्रेजिडीज़ हैं. कॉमेडीज़ भी हम देख चुके हैं, मच अडू अबाउट नथिंग एंड ऑल, मेमोआ, ट्रैवल राइटिंग, ऑटोबायोग्राफी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दीज विल बी कवर्ड. फिक्शनल फॉर्म्स दे रखे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज, रेनेसांस, रेफॉर्मेशन. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता है. हु इज़ नोन एज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा? तो इसके लिए हम बोलते हैं जॉफ्री चौसर को. एंड व्हेन इट इज़ अबाउट रेफॉर्मेशन, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन की बात करते हैं. सो दिस इज जॉन वाइक्लिफ, हुज फॉलोअर्स आर नोन एज लॉर्ड हार्ट्स. काफ़ी कुछ हमारे पास बताने को. मेटाफिजिकल पोएट्स, जॉन डन आप आ जाते हैं. रोमांटिसिज्म, हु कैन फॉरगेट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कोलरिच. इसमें भी हमारे अपर रोमांटिक्स है, लोअर रोमांटिक्स हैं. हमारा लेक पोएट का डिस्ट्रिक्ट है. अब अच्छा हम ज़्यादा डिटेल्स में जाते हैं. मॉडर्निज्म, इम्प्रेशनिज्म एंड फिगर ऑफ स्पीच. दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और देखिए फिगर ऑफ स्पीच, अब प्लीज़ वी हैव टू फोकस ऑन समथिंग एल्स. जैसे हमारा फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरलाची, जैसे मैंने एक वर्ड अभी बोला था एडाइनेटन. एडाइनेटन क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड हाइपरबली. सिनेक्टिकी क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिनेक्टिकी एंड मेटोनिमी, पैराडॉक्स, ट्रांसफर एपिथेट, पन, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, लाइटोटीज, रेट्रिक, हाइपोफोरा, एंटीपोफोरा, इन चीज़ों को हम फोकस करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन बी, दैट इज पोइट्री. देखिए विलियम शेक्सपियर, द फादर ऑफ English, you can say language in a sense, you can say, because he gave a lot of jargons to English language. और इसके बाद जब हम ड्रामा की बात करते हैं, undoubtedly he is also known as, कोई क्रिस्टोफर मार्लो भी कहता है. मॉडर्न ड्रामा में हेनरिक इब्सन भी आ जाते हैं. बट हाँ, विलियम शेक्सपियर, ही हैज़ रिटन 37 प्लेज. और इनके देखिए यहाँ पे कुछ सोनेट है जिसको 12+2 के फॉर्मेट में लिखते थे. लास्ट लाइन्स को हम वोल्टा कहते थे. फिर देखिए जॉन मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड पैराडाइज लॉस्ट, हु कैन फॉरगेट दैट. जॉन डन, कैनोनाइजेशन. विलियम वर्ड्सवर्थ के देखिए टिंटन एबी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. पी.बी. शेले, ओ टू अ वेस्ट विंड, टू अ स्काइलर. जॉन कीट्स, Alfred Lord Tennyson, Robert Browning, Arnold and W.B. Yeats. These are to be covered in the form of poetry. The second coming and sailing to Byzantium. I love second coming because it is about Lord Jesus Christ. The moment he will come to the earth and there will be an Armageddon. Armageddon is a battle which is the final battle which will happen between the evil and the, you can say, the prosperous one. Not prosperity in sense of morality. Those who are really prosper in moral things and moral stature, in moral gestures. और finally battle होगी. Next segment पे देखिए हम लोग आते हैं सेक्शन सी, ड्रामा. ड्रामा में देखिए विलियम शेक्सपियर, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस. सबसे पहले देखिए हमें पता होना चाहिए मैकबेथ की. देखिए यहाँ पर बात आ जाती है. ट्वेल्थ नाइट आ जाता है. हु कैन फॉरगेट अबाउट मैकबेथ? बहुत ही भयंकर. इसका ट्रैजिक फ्लॉ क्या था? द सोरिंग एम्बिशन, द वॉल्टिंग एम्बिशन वाज दिस ट्रैजिक फ्लॉ. पढ़ने में इसको मज़ा आएगा. ट्वेल्थ नाइट हो गई, मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गई, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन. पोर्शिया वाला हमारा जो है बहुत ही अच्छा है, इसको कवर हम करेंगे. बेन जॉनसन, सन्स ऑफ बेन्स बोले जाते थे, इफ़ यू रिमेंबर, कैवेलर पोइट्स इनको कहा जाता था. ये भी कंटेम्प्रेरी थे शेक्सपियर के, उनका एक फ्यूजन भी था शेक्सपियर के साथ. जॉन ब्राइटन, द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म इन कॉल फॉर लव. सर जी बी शॉ, ही वॉज आइकोनोक्लास्टिक.
आर्म्स एंड द मैन गाल्सवर्दी द फादर ऑफ द प्रॉब्लम प्ले। इसके बाद हैरल्ड पिंटर, यूजीन ओनील, आर्थर मिलर और गिरीश कर्नाड, इनके जो हमें सारे के सारे जो हैं यहाँ पर जो इनका पॉइंट ड्रामा आता है इन्हें हमें कवर करना है। ध्यान रखिएगा हर चीज़ बहुत सिस्टमेटिकली हमको जाना है। फिर देखिए आपका यहाँ पर सेक्शन डी में आ जाता है प्रोज एंड फिक्शन, वेयर वी आर गोइंग टू लीड ओ हेनरी। ओ हेनरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये अभी भी सीबीएसई में इनकॉर्पोरेट है। हेनरी फील्डिंग, जेन ऑस्टिन, जेन ऑस्टर को हम फादर ऑफ डोमेस्टिक नॉवल भी कहते हैं, और उनका जो घर है उसको म्यूजियम में इट हैज़ बीन कन्वर्टेड। चार्ल्स डिकेंस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, थॉमस हार्डी द फादर ऑफ रीजनल नॉवलिस्ट, एंड द मेयर ऑफ कास्टरबीच हमको पढ़ना है। वेसेक्स इनका रीजन था। जॉर्ज ऑरवेल, 1984, एनिमल फार्म हालांकि यहाँ करना है 1984 का भी पढ़ने का मौका मिले। आई लव जॉर्ज ऑरवेल। इनका एक पैराडॉक्स का इन्होंने बड़ा अच्छा यूज़ किया था, एंड दैट पैराडॉक्स वॉज लिटरली आई मीन मच एक्लेम, जिसको कहते था स्लेवरी इज फ्रीडम, एक बड़ा अच्छा आई कैनॉट रिकाउंट इट राइट नाउ। गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है। हॉथरॉन, अर्नेस्ट हेमिंगवे दैट ही गेव द टर्म द लॉस्ट जनरेशन। Raja Rao, R.K. Narayan and Kamala Markande and Chinua Achebe, Things Fall Apart. He is also known as, Chinua Achebe is known as father of African literature. जो अफ्रीका का लिटरेचर आता है उसके बारे में बताया जाता है। Francis Bacon, the father of English essay, of studies of truth, full of aphorism, full of pithy and terse, and you can say full of epigrams. ये उसके है जोसेफ एडिसन, इनको बहुत बड़ा सैटरिस्ट भी कहा जाता था। रिचर्ड स्टील है, चार्ल्स लैम, ईवी लुकस, बर्टन रसल, रिचर्ड राइट, महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, बहुत ज़्यादा बिकने वाली किताब है। जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मॉगम, अनीता देसाई एंड कैथरीन मैंसफील्ड। ये कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा इन योर ग्रेजुएशन। सो दिस वाज द होल स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। इट इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड यू नो वी ऑल हैव गॉट द रिसोर्सेज। नाउ द पॉइंट हियर इज we have to go systematic, we have to go line by line, we have to go in a chronological manner. There shouldn't be any anachronism. देखिए मैंने आपको फिर से literary terms दिया है। Alright, so I'm not gonna exhaust much of your time. Get ready with us, connect with us. Even competition is hell bent on your success, and believe me, we will provide you the human service. That's all for today. Thanks and have a nice day.